ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اس سے پہلے 5 آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے گزشتہ کل عرض کی تھی۔ اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور قرآن پاک کا یہ طرز ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک ایمان والوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کا یا منکرین کا یا یہود اور نصارہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ پورے قرآن پاک کے جو مضامین ہیں اس کے اندر میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیاتوں کے اندر، پھر اس کے بعد میں جو کھلم کھلا کافرین تھے، مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں ان کا تذکرہ کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے اوپر میں برابر ہے، اانذرتہم چاہیے تو آپ ان کو ڈراویں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈراویں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر میں مہر مار دی، وعلی سمعہم اور اللہ تعالیٰ نے مہر مار دی ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی نگاہوں کے اوپر میں ایک پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کافرین اور مشرکین کے اندر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے آئندہ زمانے میں ان کو سمجھانے کے بعد وہ ایمان لانے والے تھے۔ کبھی موقع ہوتا تھا کہ فلانا آدمی اگر اس کو سمجھائے گا تو وہ ایمان لائے گا، یا فلانی جگہ کے اندر میں پہنچے گا اور فلانے کی بات کو سنے گا تو ایمان لائے گا۔ یہاں پر ان کافروں کا تذکرہ مراد ہے، اور ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابد الآباد کی شقاوت اور بدبختی لکھ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی بھی اگر ان کو سمجھاویں لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو ایک موقع دیا جاتا تھا اور مہلت دی جاتی تھی۔ اس موقع تک انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تو پھر انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بد دعائیں فرماتے، بد دعا دیتے۔ نبی کا بد دعا دینا اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم نہ دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے اندر میں موجود ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جو گینے چونے مسلمان ہوئے ہیں، جلالین کے کہنے کے مطابق 80 مرد اور عورتیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو بد دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے
कि रुए ज़मीन के ऊपर में किसी भी काफिर को जो है ज़िंदा न छोड़ दिया जाए, अल्लाह का अज़ाब आया। नबी का बद्दुआ करना भी अल्लाह के हुक्म से होता था। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ये दिल में ख्याल आया कि मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के बारे में बद्दुआ करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम, तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं है, कोई भी मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लैसा लका मिनल अम्रि शै औ यतूब अलैहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। अगर वो कबूल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों के अंदर में ऐसे काफिरों का, ऐसे मुनकिरीन का तस्कीरा फरमाया कि जो अबदुल आबाद तक शकी और बदबख्त लिख दिए गए थे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, चाहे तो आप उनको डरावें या न डरावें, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, आदमी दिल के ज़रिया से, दिमाग के ज़रिया से, गौर व फिक्र के ज़रिया से इल्म हासिल करता है, सुनने के ज़रिया से इल्म हासिल करता है, देखने के ज़रिया से भी इल्म हासिल करता है। इसलिए उलमा किराम ने इंसान के बदन के अंदर में जो 5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिया से इंसान को इल्म हासिल होता है, ज़िक्र फरमाया है। चखने की ताकत ज़बान के अंदर में रखी है, उससे भी इल्म हासिल होता है। फिर छूने की ताकत जो पूरे बदन पर है, उससे भी जो है इल्म हासिल होता है। फिर सूंघने की ताकत ये नाक के अंदर में रखी हुई है, उससे भी इल्म हासिल होता है। फिर देखने की ताकत, और 5वें नंबर पर सुनने की ताकत, इसको हवासे खमसा ज़ाहिरा कहा जाता है। ये 5 चीज़ें हैं, इसके ज़रिया से इल्म हासिल होता है। ये 5 चीज़ें जब अपना काम करना बंद कर देते हैं, उसके बाद में इंसान के अंदर में अल्लाह ताला ने अक्ल रखी हुई है जो अपना काम करती है, और जहाँ अक्ल अपना काम करना बंद कर देती है, उसके बाद में काम करती है वही इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो वही नाजिल की गई। इसको अगर इंसान अक्ल के ज़रिया से समझना चाहे तो समझ नहीं सकता, इसलिए कि वही इलाही का जो दायरा और एरिया जो है ये अक्ल इंसानी से ऊपर है। तो 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के बदन के अंदर में रखी जिसके ज़रिया से इल्म हासिल होता है, अक्ल भी रखी, और उसके बाद में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिया से वही नाजिल फरमाकर लोगों को समझाने की अल्लाह तबारक व तआला ने कोशिश की। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि न तो इनका दिल व दिमाग काम करता है, और न तो इनके कान काम करते हैं, और न तो इनकी निगाहें काम करती है। इल्म के आने के जो असबाब और ज़रिए हैं, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिल व दिमाग के ऊपर में मोहर लगा दी। व अला समइहिम, और उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी निगाहों पर एक पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। आदमी दिल दिमाग के ज़रिया से जो सोचता है, चारों तरफ का, बल्कि 6 जिहाद के ज़रिया से सोचता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे, 6 जिहाद के ज़रिया से सोचता है। और सुनना भी जो है 6 जिहाद से सुनता है। कोई भी आवाज़ आएगी, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे से, दाएं से बाएं से, 6 जिहाद के ज़रिया से वो सुनता है। लेकिन देखने की जो ताकत है, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिहत के अंदर में रखी हुई है। सामने की जिहत के अंदर में आदमी देख सकता है, पीछे का नहीं देख सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
ये जो देखने की ताकत है, इसके लिए अल्लाह ताला ने मोहर नहीं लगाई बल्कि पर्दा डाल दिया कि आदमी सामने की जानिब से देख सकता है। एक किस्म का पर्दा अल्लाह तबारक व ताला ने निगाहों के ऊपर में डाल दिया, जिसकी वजह से वो देख नहीं सकता। तो गोया हक बात को सुनने से ये बहरा है, और हक बात को देखने से ये अंधा है, और हक बात को समझने से ये गोया के बेअकल है, उसके लिए बड़ा अजाब है। इन दो आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने मक्का के मुशरिकीन और काफिरीन का तज़किरा फरमाया। उसके बाद वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, यहाँ से लेकर के 13 आयतों के अंदर में अल्लाह तबारक व ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया। मक्का मुकर्रमा के अंदर में मुसलमान दब करके रहते थे, यहाँ तक कि दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में मुखालफत इतनी ज़ोर पर हुई कि हिजरत करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मजबूर हुए। इसलिए हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो हयातुस सहाबा लिखी हुई है, उसके शुरू के अंदर में 4 चीज़ें लिखी हुई है: दावत, मुखालफत, हिजरत और नुसरत। दावत के नतीजे के अंदर में मुखालफत इतनी बढ़ जाए कि आदमी अपने वतन को छोड़ने पर और हिजरत करने के ऊपर में मजबूर हो जाए। हिजरत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत आती है। नुसरत से मुराद खाना पीना वगैरह नहीं है, या इकराम और एहतराम करना ये मुराद नहीं है। लोगों का इस्लाम के अंदर में दाखिल होना ये मुराद है नुसरत से। इसीलिए इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये जब आयत नाजिल हुई, इसके अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नुसरत का तज़किरा किया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत आएगी, वल फतह और कामयाबी मिलेगी, तो क्या होगा? वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जमातों की जमातें इस्लाम के अंदर में दाखिल होंगे, ईमान के अंदर में दाखिल होंगे। ये है असल में नुसरत। और एक बात और भी है जो इसी सूरत के ज़िम्मे में है कि जब सूरत नाजिल हुई, सहाबा किराम जो खुश हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे, ये कहते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग का ज़माना ख़त्म हुआ और अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ वापस चले जाएंगे। तो बहर के दावत, मुखालफत, हिजरत और नुसरत ये चौथे नंबर पर होती है। मदीना मुनव्वरा जब पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा के अंदर में मुशरिकीन का बड़ा गलबा था। अक्सरियत और ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में मुशरिकीन थे। यहूद भी थे, लेकिन तादाद के एतबार से मुशरिकीन से कम थे, लेकिन माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से बड़े मालदार थे। इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था मुशरिकीन के ऊपर में भी। मुशरिकीन के अंदर में एक काफिर था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो बाद में जो है वो मुनाफिक बन गया, और उसी को रअसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। मदीना मुनव्वरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके पहुँचे, इससे पहले मदीना के मुशरिकीन ने और यहूद ने ये प्लान किया था कि अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल को ताज पहनाया जाए, और उस ताज पोशी के अंदर में ये ऐलान कर दिया जाए कि ये काफिरों का भी, मुशरिकीन का भी सरदार है और यहूद का भी ये सरदार है। ये ताज पोशी करना बाकी थी, कुछ दिन बाकी थे। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के दरमियान में और मुशरिकीन के दरमियान में और मुसलमानों के दरमियान में भाईचारगी कायम फरमा दी, एक दूसरे का भाई करार दिया। अब मुशरिकीन, यहूद
اور مسلمان सब मिल जुल कर के रहने लगे तो अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल जो था उसका ताज निकल गया, ताज मिलने वाला था वो ताज रह गया। उसके दिल के अंदर में ये बात पैदा हुई कि मेरी जो रियासत थी और मेरी जो सरदारी थी इन मुसलमानों के आने की वजह से ख़त्म हो गई। अब मुझे ताज नहीं पहनाया जाएगा, ताज पोशी नहीं की जाएगी। एक तरफ मुसलमानों का गलबा हो रहा था तो इसने ये चाहा कि मुसलमानों की तरफ भी रहना ज़रूरी है। कल उठ कर के अगर मुसलमान गालिब हो जाएंगे तो कहीं हमको कत्ल न कर डाले या हमको मदीना मुनव्वरा से बाहर न निकाल दें। इसी तरीके से जो मदीना मुनव्वरा के अंदर में मुशरिकीन और काफिर थे उनकी अक्सरियत थी और उनकी तादाद ज़्यादा थी तो उनका भी ख्याल रखना उसके लिए ज़रूरी था कि कहीं वो गालिब आ जाएंगे तो अगर हम मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर करेंगे तो ये लोग हमको सताएंगे। ऐसी बातों के अंदर में गज़वे बदर हुआ हिजरी सन 2 के अंदर में, और बदर के अंदर में मुसलमानों का गलबा हुआ। काफिरी में से 70 आदमियों को कत्ल किया गया, 70 को कैद किया गया और मुसलमानों का गलबा हुआ। ये देख करके अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने देखा कि अब तो जो है मुसलमान गालिब आ ही जाएंगे, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर में मुशरिकीन की अक्सरियत और ज़्यादा उनकी तादाद देखकर वो फिर डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन मुसलमानों के ऊपर में गालिब आ जाए। इसलिए उसने बीच वाला रास्ता इख्तियार किया। कभी मुसलमानों को मिलता तो ईमान की बातें करता और काफिरों को मिलता तो कुफ्र और शिर्क की बातें करता। उलमा ने और मुफस्सिरीन में लिखा हुआ है कि कुफ्र और शिर्क, इसके अलावा यहूदियत और नसरानियत, ये मुसलमानों को और इस्लाम को इतनी ज़्यादा नुकसान देने वाली नहीं है जितना नुकसान देने वाला निफाक है। निफाक, ये निफाक के बारे के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयतों को जिक्र फरमाया। शुरू के अंदर में ईमान वालों का तज़किरा हुआ 5 आयतों के अंदर, फिर काफिरों का तज़किरा हुआ 2 आयतों के अंदर में, और इसके बाद में जो मुनाफिकीन हैं इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयतों के अंदर में जिक्र फरमाया। तो गज़वे बदर के बाद में ये मुनाफिकीन का वजूद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा अपने नबी के सामने कर दिया था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के बता दिया कि फलाना 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 ये मुनाफिक है। हज़रत मौलाना सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है कि 12 बड़े मुनाफिकीन का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया था। 12 आदमी ऐसे थे कि जिनका मुनाफिक होना पक्का और यकीनी था, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। बहुत से मुखलिसीन सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आते और पूछते कि मेरा नाम कहीं मुनाफिकीन के अंदर में तो नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में जाते। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो फहरिस्त थी और लिस्ट थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दे दी थी, वो किसी को भी बताते नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास में गए, कहा कि हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन के अंदर में है। तो हज़रत हुज़ैफा फरमाते कि मैं नहीं बताता कि मेरा नाम मुनाफिकीन के अंदर में नहीं है। तो कहते कि मैं नहीं बताता, है वो भी नहीं बताता, नहीं है मैं वो भी नहीं बताता। इसीलिए उनको लक़ब दिया गया अमीनु हादिहिल उम्मती, इस उम्मत के अमानतदार, अमीन इस उम्मत का उनको लक़ब दिया गया। तो तकरीबन 12 आदमियों का पक्का मुनाफिक होना अल्लाह तबारक व तआला ने एक फहरिस्त नाजिल फरमाई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दी थी। तो ये जो बीच की जो किस्म है, न काफिर है न मुसलमान है, न कुफ्र के अंदर में पक्के और न इस्लाम के अंदर में पक्के,
बल्कि 20 की जो नाम है और शक्ल है जिसको मुनाफिक कहा गया, इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन 13 आयतों के अंदर में ज़िक्र फरमाया। वमिनन नासी मन यक़ूलु, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम तो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। दिल के अंदर में इनकार था, दिल के अंदर में कुफ्र था, दिल के अंदर में अल्लाह को मानते नहीं थे, दिल के अंदर में आखिरत को मानते नहीं थे, दिल के अंदर में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को मानते नहीं थे, जन्नत और जहन्नम को मानते नहीं थे। लेकिन जब मुसलमानों से मिलते तो मुसलमानों के सामने यूँ कहते कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाए हुए नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये मुनाफिकीन अपने एतबार से अल्लाह को धोखा देते हैं और ईमान वालों को धोखा देते हैं। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन ईमान वालों को तो धोखा दे सकते हैं। ईमान वालों को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम भी साथ में जोड़ दिया, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला को ये लोग धोखा देते हैं और ईमान वालों को भी धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि वो अपने आप ही को धोखा देते हैं। वमा यशऊरून, उनको इसका शऊर भी नहीं है और उनका एहसास भी नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों के अंदर में बीमारी है। अब वो किस्सा सामने रखो, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की जो ताजपोशी होना थी, मदीना मुनव्वरा का उसको रईस बनाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दरमियान में सुलह कर दी और उसकी रियासत और उसका रईस होना बाकी रह गया। उसके दिल के अंदर में ये हसद आया कि कहाँ मुसलमान यहाँ पर आ गए जिसकी वजह से मेरी ताजपोशी बाकी रह गई। तो उसके दिल के अंदर में बीमारी थी हसद की। तो अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फरमाया कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों के अंदर में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हसद उनके दिलों के अंदर में था, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मोमिनीन के ख़िलाफ़। ये जो मर्द था, जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता गया उनकी बीमारी बढ़ती गई। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। आगे फिर मुनाफिकीन की हालत को बयान किया। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता कि ज़मीन के अंदर में फसाद मत फैलाओ, फसाद मत मचाओ। दरअसल मदीना मुनव्वरा जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की दावत और तबलीग के नतीजे के अंदर में एक घर के अंदर में एक दो मुसलमान होते, मियाँ मुसलमान हो जाता, बीवी इस्लाम से रह जाती, या बीवी मुसलमान होती, मियाँ रह जाता, बाप मुसलमान होता, बेटा रह जाता, बेटा मुसलमान होता, बाप रह जाता। तो ये मुनाफिकीन जो थे वो ऐसे घरों के अंदर में जाते जहाँ पर एक मुसलमान हुआ और एक बाकी है। तो बाप मुसलमान हुआ और बेटा मुसलमान नहीं हुआ तो बाप को समझाने के लिए जाते कि अपने बाप दादाओं के दीन को क्यों छोड़ देते हो, अपने बाप दादाओं के दीन के ऊपर में बाकी रहो, बरकरार रखो, अपने दीन के ऊपर में बाकी रहो। इसी तरीके से मियाँ बीवी में से अगर कोई एक मुसलमान होता तो उनको समझाते कि ऐसा क्यों करते हो, अपने बाप दादा के दीन के ऊपर में बाकी रहो। अब जब मुसलमानों को इसका इल्म होता तो उनको जा कर के समझाते तो कहते कि हम तो जो है आपस के अंदर में सुलह कराते हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनको यूँ कहा जाता कि ज़मीन के अंदर में फसाद मत मचाओ, क़ालू, तो ये मुनाफिकीन जवाब देते इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो आपस में सुलह कराते हैं। बाप बेटे के दरमियान में इस्लाम आने की वजह से जुदाई हो गई, मियाँ बीवी के दरमियान में जुदा हो गई,
اس کی وجہ سے ہم صلح کراتے ہیں تاکہ ایک دوسرا پہلے جس طریقے سے مل کر کے رہتے تھے اس طریقے سے رہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنو بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے. آمن الناس، ناسو کا ترجمہ لوگ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. تو جب ان منافقین سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طریقے سے دوسرے لوگ ایمان لائے. قالوا، تو یہ منافقین کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جس طریقے سے بیوقوف لوگ ایمان لائے. صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے تھے. سفہا یہ صفی کا جمع اور بہوچن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے مسلمان یہ بیوقوف نہیں ہے، یہ منافقین جو ہے جو ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں وہی بیوقوف ہے. الا سنو انہم هم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے، یعنی یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہوئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور یہ جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے کافر اور مشرکین لیڈروں کے پاس تنہائی کے اندر میں ہوتے، قالوا انا معکم، تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا استہزاء اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ٹھٹھا اڑاتا ہے اور ان کو ڈیل دے رکھی اللہ تعالیٰ نے. وہ اپنی سرکشی کے اندر میں، اپنی گمراہی کے اندر میں بھٹک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں یا ہدایت دے کر. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت اور ان کی بیع و شراء نے ان کو فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے. یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو آیت کے اندر میں بیان فرمایا کہ اولئک الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ الذین، جن لوگوں نے اشتروا الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا، بالہدی، ہدایت دے کر. اب یہاں پر یہ جو با ہے، با بالہدی کے اندر میں با، یہ با قیمت کے اوپر میں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ اشتریت الکتاب بعشرۃ ربیات، کتاب کو میں نے خریدا 10 روپیوں کے بدلے کے اندر میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت دے کر، حالانکہ ان کے پاس میں ہدایت نہیں تھی. ہدایت اگر ہو اور ہدایت دے کر کے گمراہی خریدے تو یہ اللہ کی بات برابر سمجھ میں آ سکتی تھی. کیا مطلب؟ گمراہی کو خریدا انہوں نے ہدایت دے کر. علماء کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، گمراہی کا راستہ واضح کر دیا، ضلالت والا راستہ بتا دیا، ہدایت والا راستہ بتا دیا. ان منافقین کے سامنے دونوں قسم کے راستے تھے. جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہ کے اندر میں بھی فرمایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی. یہ راستہ جنت والا
اور یہ راستہ جہنم والا. آدمی اپنے اختیار سے جنت والا راستہ اختیار کرتا ہے, آدمی اپنے اختیار سے جہنم والا راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ کی طرف سے بندے کو مجبور نہیں کیا گیا, بندے کو اختیار دیا گیا, بندے کو طاقت دی گئی, بندے کو توفیق دی گئی. وہ اپنے عقل سے, اپنے اختیار سے جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. تو گویا ان منافقین کے سامنے دونوں راستے تھے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے وہ جنت کے اندر میں جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کرتے, لیکن ان لوگوں نے گمراہی والا راستہ اختیار کیا اور ہدایت والا راستے کو چھوڑ دیا. اس کو قرآن پاک نے بتایا کہ گویا ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم, کوئی بھی آدمی تجارت کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, بیچنے کا خریدنے کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر میں نفع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہی کو خریدا ہدایت دے کر کے, یہ ایسا سودا ہوا کہ اس سودے کے اندر میں ان کو کوئی نفع نہیں ہوا. فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے, ہدایت کا راستہ پانے والے نہیں ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال بیان فرمائی. ان منافقین کے اندر میں کچھ مضبوط بھی تھے اور کچھ ڈھیلے ڈھالے بھی تھے. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی آگے والی آیات کے اندر میں. انشاءاللہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا.